Hello, all of you. Good evening. This is the first lecture that I'm going to share with you guys about manufacturing industries, skills, knowledge, machineries, and process. So, मेरा नाम है सरोज कुमार ठाकुर and I am working as a quality head of manufacturing industries, manufacturing automotive components for all the top OEMs in India and railways, metros. So, let's start with the CNC machining technology. This is my first presentation for you guys that you will come to know what is the basic process and how it ensures the productions and manufacturing of quality products with the help of so many advanced and optimal technological advanced machineries with the best process, best skilled engineers and machineries, process, designs. So there are so many factors we will discuss one by one. So my this presentation is basically dedicated to those guys who are actually in colleges and who are about to pass out their college and who have already passed, especially for mechanical background, technical students like ITI, mechanical fitter, diploma in mechanical, electrical, and BTech graduates in mechanical and electrical. Those who actually I have seen that they aspire to actually work in automotive industries और वो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपना सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में तो उनको क्या बेसिक प्रैक्टिकल अवेयरनेस होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ 2 years 3 years and 4 years in their graduations and diploma and ITI so उनको theoretical knowledge होती है but they don't much know about the industrial requirement and टेक्निकल रिक्वायरमेंट टेक्निकल अवेयरनेस वो एक गैप रहता है आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव विजिटेड फॉर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स फ्रॉम माय कंपनी टू द कॉलेजेस एंड आई हैव सीन दैट वो गैप एक रहती है थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल्स में जैसे कैसे सीएनसी मशीन जस्ट फॉर एग्जांपल वर्क करता है दे एक्चुअली स्टडी लाइक सम मशीन्स आर देयर एंड व्हिच इज computerized and numerically controlled but they don't know what is it exactly so आज के लेक्चर में मैं यही एक डिस्कस करना चाहूंगा और कंटिन्यू मैं करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल पता चले so that you will whenever you are going to start your career and you are going to get the interviews in industries and private sectors तो वो आपको मैक्सिमम हेल्प करे और मैक्सिमम आपको पैकेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट लेने में अच्छी कैरियर स्किल्ड engineers बनने में आपको help करेगा. So let's start with these slides. So in very first slides, this tells that CNC machining technology, industry-oriented training for mechanical and engineering students. Now, first of all, I would like to talk about the introduction to CNC machining. The first very question is that what is CNC? So CNC basically stands for computer numerical control. Means एक ऐसा मशीन जो मैकेनिकल मशीन है वो कंप्यूटर के थ्रू न्यूमेरिकल्स के हेल्प से जैसे अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के हेल्प से हम लोग कुछ कोडिंग्स के हेल्प से इनपुट डालते हैं उसके हम लाइक प्रोग्राम करते हैं कि कितनी लेंथ होनी चाहिए किसी कंपोनेंट का कितनी वेट कितनी ग्रूव होनी चाहिए थ्रेडिंग देयर आर सो मेनी ऑपरेशन वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन सो एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर के थ्रू न्यूमेरिकली कंट्रोल होती है means CNC is an automated manufacturing process where machine tools are controlled using computer programs. There are two basic factors of program that is G code and M code. We will discuss later on what are the G codes and M codes that is used in programming for the machining and to produce and manufacture of automotive components, non-automotive components, those are used in like four-wheelers, bikes, car, auto, tractors, bus, trains, aeroplanes. उस सब में जो components आप देखते होंगे रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में वो हम लोग इस मशीनरीज के हेल्प से बेस्ट
क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाई सीएनसी इज इम्पोर्टेंट? द सीएनसी इज इम्पोर्टेंट फॉर हाई एक्यूरेसी। जो अदर मशीनरीज होती है, जो मैनुअल मशीनरीज होती है, आज से 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले में आप देखते होंगे, जो घर में हम लोग कोई भी काम करते थे तो मैनुअल रहती थी, बहुत ज्यादा वो एक्यूरेट नहीं होता था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कारपेंटर्स की बात करेंगे तो उनके पास बहुत सारे जो कारपेंटर्स के पास इक्विपमेंट्स होते थे वो मैनुअल होते थे, वो ज्यादा टाइम लगती थी उनको और उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी। जैसे आजकल के आप देख सकते हैं, जैसे आर्किटेक्टर कारपेंटर्स होते हैं जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हाउस होल्ड आपके गेट्स डोर्स बेड्स वगैरह बनाते हैं, कितनी फाइन एंड एक्यूरेट होती है। तो इस मशीनरीज की हेल्प से जैसे आप देखते होंगे आपके विंडोज वगैरह पे एक प्रोफाइल डिजाइन की जाती है, जो जैसे किसी फ्लावर्स का, किसी ट्रीज का, किसी बर्ड्स का, सो दैट इज मोर एक्यूरेट देन मैनुअल वर्क। सो CNC is important for high accuracy, means plus minus 0.005 mm, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 5 माइक्रोन के आसपास इसकी एक्यूरेसी है। तो जो वेरिएशंस होती है, मतलब लिस्ट काउंट वो प्लस माइनस 0.005 mm, यू कैन थिंक mm कितना कम होता है, उसका भी 0.005 कह सकते हैं, मतलब वो mm है। तो दैट इज एग्जैक्टली यू कैन नॉट सी इवन बाय द नेक्ड आई, सो इट इज टू हाई एक्यूरेट। उसके बाद सीएनसी मशीनों में हाई प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब प्रोडक्शन आप ज्यादा कर सकते हैं। एक बार आपने किसी प्रोग्राम प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोग्राम बना लिए हैं और उसको आपको 1000 1 लाख 2 लाख 3 लाख पार्ट्स बनाने हैं, तो आपको फिर वन गो में आपके 300 400 500 लाख कितना भी अनलिमिटेड जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी क्वालिटी कंप्रोमाइज। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर है रिपीटेबिलिटी, मतलब एक टाइप का पार्ट आपने शुरू में जैसे मशीन सेट किए, प्रोग्राम सेट किए, रॉ मटेरियल फीड कर दिए, देन यू विल गेट सिमिलर प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे नहीं तो आपकी वेरिएशंस नहीं आएंगी, मतलब रिपीटेबिलिटी अच्छी रहेगी। जैसा आप कंपोनेंट चाहेंगे वैसा ही कंपोनेंट आएगा और वो आपको आगे जाकर के अपने कस्टमर्स या फाइनल असेंबली में फिट एंड फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज reduced human error, since we know that ये कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स है, तो इसमें हम लोग रिपीटेशंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है। मतलब जो ह्यूमन एरर है, जो मैन और हम लोग के द्वारा ऑपरेटर्स मैनेजर्स इंजीनियर्स टेक्नीशियंस के द्वारा जो आप मैनुअली करेंगे तो उसमें चांसेस रहती है मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, प्रोसेस टू प्रोसेस, टाइम टू टाइम वेरिएशन आ सकती है। बट सिंस इट इज कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो वहाँ पे ह्यूमन एरर के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रहती है जी कोड एम कोड के थ्रू। उसके बाद होती है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में जैसे आपको मारुति या इंडियन रेलवे या कोई पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो ने आपको एक सिमिलर प्रोडक्ट की परचेज ऑर्डर दे दिया है और आपको बोल दिया कि यू आर माई डेवलप्ड सप्लायर, और आपको अगले 10 साल तक या अगले 15 साल तक, जैसे कार की कोई पार्ट बननी है, जितना कार की लाइफ होती है बाइक्स की, तो आपको बोल देगा मेरे को अगले 15 साल तक 15 करोड़ पार्ट्स देने हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम और इस कंप्यूटर कंट्रोल मशीन के थ्रू बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब अगले 15-20 साल तक आप पार्ट को बना सकते हैं विदाउट एनी क्वालिटी कंप्रोमाइज, विदाउट एनी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इश्यूज। तो ये आपको मास प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर है बेटर सरफेस फिनिशिंग, सिंस इट इज अ वेरी एक्यूरेट मशीन एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन होती है, तो उसमें आपका क्या होता है, सरफेस फिनिश किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे रफनेस नहीं आएगी, स्क्रैचेस डेंट्स नहीं होते। जैसे आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेते, जैसे आउटर एरिया में जो ए क्लास एरिया होता है उसमें देखते होंगे कोई डेंटेड नहीं दिखेगा आपको, कोई स्क्रैच रस्ट वेरिएशन नहीं दिखेगा, मतलब सरफेस फिनिश बिल्कुल शाइनिंग रहेगी। तो उसमें आपकी जो रफनेस वगैरह आती है, जो RZ RA वैल्यू मेजर करते हैं, वो बहुत ही कम मिलेगा आपको 20 माइक्रोन या 50 माइक्रोन के आसपास मिलेगा। उससे आपको टच करके ह्यूमन को फील भी नहीं हो सकती है कि देयर इज एनी इन सरफेस, और वहां पे सरफेस फिनिश अच्छी नहीं है। तो आपको इस मशीन को यूज करके आप बेटर सरफेस फिनिश का प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट्स बना सकते हैं, क्वालिटी कंपोनेंट्स। फिर होती है इंडस्ट्री 4.0 कंपैटिबल होती है, और ये मशीन जो आजकल की सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे अमेरिकन सोसाइटीज में या आप यूरोपियन यूनियन नेशंस में जितनी भी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीनरीज या प्रोसेस है जो डिजाइन की जाती है किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कार बाइक ट्रक बस,
ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन को बनाने के लिए जो प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को यूज करते हैं वो इंडस्ट्री 4.0 होती है। मतलब वो ऑटोमेशन, बिल्कुल कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मशीनरीज, मेंटेन मशीनरीज, इस सबको जो हेल्प करती है वो इंडस्ट्री 4.0 है, जो कंपेटेबल होती है। हम किसी एक लेक्चर में इंडस्ट्री 4.0 का भी एक प्रेजेंटेशन करेंगे, देन यू विल कम टू नो वेरी वास्ट वेज, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स मेरा यही था कि आप सीएनसी मशीन को जाने, सीएनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्यों यूज करना चाहिए इंडस्ट्रीज में, कैसे ये हेल्प करती है। तो आपने ये देखा कि सीएनसी मशीन एक कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, जिसमें हम लोग जी कोड, एम कोड के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं, फीड करते हैं एज ए इनपुट। कैसा भी प्रोडक्ट बनाना हो तो इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रिपीटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी आती है, ह्यूमन एरर की चांसेस बहुत कम रहती है, मास प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बेटर सरफेस फिनिश होती है, और ये इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट करती है। सो आई होप आज के आप लोग को समझ में आए होगी, और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छी फिनिशिंग्स आएंगी, अच्छी एक दूसरे को समझ में आएगा। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फॉर यू गाइज, सो आई होप चीजें सही से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी कंसर्न एंड एनी सजेशंस, सो प्लीज डू लेट मी नो। मेरे को बताइए, आप कमेंट्स करके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और आई होप ये जर्नी हम लोग की बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत अमूमन देखा है जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, मैकेनिकल, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं और अच्छी से अच्छी स्किल्ड इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ ऑफ ऑपरेशन जो बनना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उनको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उनके बीच में कॉलेज और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स होती है। तो इसी चीज को फिल करने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो नेम है मैन्युफैक्चरिंग स्किल एकेडमी। बेसिकली इट इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्किल एकेडमी, एंड इसमें बहुत सारी चीजें आगे हमें करना है। इस एकेडमी को स्टार्ट किए हैं, इस एकेडमी को बहुत ज्यादा आगे ले जाना है हम सब के हेल्प से, आपके हेल्प से। सो होपफुली इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।